Welcome back. We were with Dr. Khizar Daimi. We are talking about the childhood, and right now we are going for the diet, nutrition, growth project. And moreover, just we want to ask you, doctor, what a healthy diets look like. I mean to say that parents could fix a diet food one thing in particular their child's. See, the most important thing is today is that the child should receive a good balanced diet. A balanced diet should consist of adequate amount of carbohydrates, proteins, fats, nutrients and vitamins, Yes. which are sufficient enough to promote their growth and development. For example, a balanced diet should include all these 5 things, such as fruits and vegetables. Yes. These fruits and vegetables provide vitamins, minerals, antioxidants. Okay. The whole grains, Yeah. the whole grains such as rice, wheat, this will improve the energy in the child. They provide energy and helps in easy digestion also. Now coming to the proteins. Proteins such as dal, chicken, mutton and egg. These are very important for muscle building. Okay. And now coming to the fats, the healthy fats such as ghee, seeds, dry fruits, all this contains healthy fats, which is very essential for the brain development. Okay. Now apart from this thing, the child should have adequate hydration. The water, at least minimum 1 to 2 liters of water, a growing child should require that much of water to have a good hydration. You mean to say 2 liters of the water for 1 to 2 liters depending on the need Okay. in a day. Yeah. Yes, because this will keep their body healthy. Thus, at the same time, can you tell me that infant and a newborn to 12 months period, what kind of food you are going to be suggest for those people? See, the most important thing is that for an up to birth, up to 6 months of age, mother milk is sufficient. Most of the people think that they can start the food early by 4 months of age or else by 5 months. No, that is not exactly correct. The food, the solid should be started after completion of 6 months, not before than that. Because 6 months is an ideal age to start the food, because their gums will become strong, they'll have a good neck control, they can have a good body control, so that they can sit upright with support, and they have good tongue thrust reflex so that they can easily swallow the solids. So the most important things at 6 months, what to start, what kind of foods to be started, the weaning, जो बच्चों को खाना खिलाने का है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, एक दो तरीके के वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी। एक तो जो है आप बेबी लेड वीनिंग है या कन्वेंशनल स्पून फीडिंग है। बेबी लेड वीनिंग ऐसा रहता है कि आप जो है बच्चे के सामने प्लेट में सॉफ्ट फूड्स ला के रख देते, जो हाथ से बच्चा खुद पकड़ के खुद खा सके। जी जी जी। इससे क्या है, बच्चा जो है जो खाना है, जितना खाना है बच्चा खुद खा ले सकता। जी हाँ जी। जितना उसको पेट भर गया तो वो अपने आप रुक जाएगा। सेकंड क्या है, कन्वेंशनल स्पून फीडिंग क्या है, इसमें जो है आप अपने हाथ से जो है बच्चे को बिठा के खिलाते हैं। इसमें क्या है, आप जो कंसिस्टेंसी देना चाह रहे बच्चे को, जिस तरीके के साथ खिलाना चाह रहे, क्या खिलाना चाह रहे, क्या है वो जो है आपको स्मैश्ड और प्यूरिड फॉर्म में बना के खिलाना रहता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या शुरू करना फर्स्ट उसमें, वन फूड वन एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है शुरुआत में जो है राइस स्टार्ट कर रहे हैं तो राइस वाटर से स्टार्ट करिए, फिर उसको प्यूरिड फॉर्म में राइस खिलाइए। सेकेंड चीज़ जो है, अगर आप दाल से स्टार्ट कर रहे हैं तो दाल वाटर खिलाइए, या मैश्ड दाल का पेस्ट बना के बच्चे को स्टार्ट करिए खिलाना। फिर ये जैसा बच्चा टॉलरेट कर रहा, पहले शुरुआत में 1 या 2 स्पून से स्टार्ट करिए जी। दोपहर के टाइम पे स्टार्ट करिए, और जब बच्चे को भूख लग रही तो टाइम पे मत स्टार्ट करिए। थोड़ा टाइम क्या है, पिला के दूध पिलाने के बाद में जो बच्चा ठीक है अच्छी तरीके से खेला उसमें है, तो उसको एक अच्छे से चेयर में बिठा के करके सब चीज़ रेडी करके 1 या 2 स्पून पहले टेस्ट करा के देखिए जी जी कि वो किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा, हैप्पीली एंजॉय करके टेस्ट कर रहा, उसका टेस्ट कैसा है। वो देने के बाद में 1 और 2 स्पून खिलाने के बाद में आपको वहीं पर रोक देना पड़ेगा। ओके। उसके बाद में ऑब्जर्व करना है कि बच्चे में कुछ तरीके की कुछ तकलीफ हो रही क्या। जैसा कि थोड़े बच्चे थोड़ा खाने के बाद फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस करते, थोड़ों को एलर्जी हो जाती, जी जी जी, थोड़ों को पेट में दर्द होता, थोड़े वॉमिटिंग करना स्टार्ट करते। यस। तो इसलिए पहले स्टार्ट करने से खुद ओनली 1 और 2 स्पून खिला के
वेट करना है और ये कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ रहे खाने रिलेटेड जो बच्चे में तकलीफ हो रही है क्या है, इसको जो है आपको ऑब्जर्व करना है। फिर जैसा जैसा एज बढ़ते रहती, जैसा बच्चा बड़ा होते रहता, उसमें जो है आप कंसिस्टेंसी खाने की जो प्यूरिड और स्मैश फॉर्म को है उसको जो है आपको थोड़ा सा थिक फॉर्म में, ग्राइंडेड फॉर्म में करके देना है, सो दैट लंपी ग्राइंडेड फिंगर फूड्स हुए रहे तो दे कैन स्वॉलो इजली टेक्सचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो 6 मंथ्स में जब खाना स्टार्ट कर रहे हैं जो आप, उसके खाने के साथ में जो है आप फ्रूट्स को भी इंट्रोड्यूस करना है। अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड अर्ली थिंग्स हेल्प इन चाइल्ड हैविंग अ बेटर न्यूट्रिशन, बेटर ग्रोथ। एट द सेम टाइम आप जब माँ के दूध की बात आई है तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, इसके बाद जो है ना फार्मूला गाइडेंस जो है आपको किस तरीके से ब्रीफ करेंगे हमारे पे? जी, मदर फीड इज़ बेस्ट फॉर द बेबी अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज। जी जी, जितना बेबी को न्यूट्रिशन, कैलोरीज एंड एवरीथिंग की रिक्वायरमेंट है, द मदर फीड इज हैज़ ऑल दैट रिक्वायरमेंट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मदर फीड ही ले। अगर थोड़े मदर जिसको नहीं है तो दे आर सपोर्ट में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में जो है फॉर्मूला फीडिंग देते। बट आफ्टर दैट, वंस द चाइल्ड इज ग्रोइंग, after 6 months, mother feed is not adequate enough for them to have a growth, because they have requirement of iron, zinc, yes, and other nutrients for their optimal growth and development. So mother feed will not be adequate enough to meet that growing demands. okay. इस वजह से जो है solid start करते। As you said before, it's a picky eating. So, I mean, what is it that is a normal? I mean, a sign of nutritional deficiency. See, picky eating is not a sign of nutritional deficiency. Picky eating is a thing when the child selectively eats the things which he likes. Okay. Yeah, as you said Which before. he likes, Yes. not the things which we are like cooking at home and giving him, and different things he will not like. He will Okay. eat for some particular things. उसमें क्या होता है कि एक पैटर्न आ जाता Yes. खाने में Yes. कि सेम चीज़ रिपीटेडली चीज़ वही खाता है बच्चा, बट डिफरेंट चीज़ जो खाने में, जैसे कि रूटीन में आप बोर हो जाते Yes. एक ही चीज़ खाते, बट बच्चा जो है सिर्फ वही चीज़ खा के होता है, बट उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के चांसेस होते। बट अगर बच्चा पिकी ईट में थोड़े थोड़े स्नैक्स खा ले रहा, थोड़ी चीज़ें जो है डिफरेंट फूड्स ट्राई कर ले रहे, साथ ही साथ में जो उसकी ग्रोथ और एक्टिव है, देन उसकी ग्रोथ में कोई फॉल्ट नहीं आ रहा, उसकी डेवलपमेंट में कोई फॉल्ट नहीं आ रहा, देन इट इज़ ओके एंड इट इज़ हेल्थी। And you mean to say that it's a But behavioral gradually, strategies. it's a behavioral issue only. Strategies. Behavioral issue only. Slowly ये जो चीज़ जो है, थोड़े बच्चे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते, बिकॉज इफ़ वी आर एक्सपोजिंग देम टू अ वेरी डिफरेंट टेस्टी फूड्स, देन डेफिनेटली दे आर overcome this picky eating. And doctor, when it comes to the common mistakes in our generation right now, so what are the most common diet mistakes we are facing right now at this same time, in particular in children? The most important challenges what we are facing today is parents are giving their child the junk food. Yes. बच्चा खाना नहीं खा रहा बोल के उसको चिप्स दे दे रहे, नमकीन्स दे दे रहे, बिस्किट्स दे दे रहे, शुगर के ड्रिंक्स दे दे रहे, चॉकलेट्स दे दे रहे। इससे क्या होता है बोले तो बच्चे में जो है घर का खाना नहीं खाता, उसकी एपिटाइट भी सप्रेस हो जाती, घर का खाने के लिए रिफ्यूज़ल होता। इसके वजह से बच्चे में कॉन्स्टिपेशन, खून की कमी, अनीमिया जिसे बोलते हैं, और साथ ही साथ में जो है शुगरी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स देने की वजह से अर्ली डेंटल केरीज होते। ये जंक फूड एंड ऑल दिस थिंग्स लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ और ओबिसिटी बढ़ा देते। Okay. At the same time, you say that right now about the sugar. I mean to say that the sugar biggest problem. Do you feel that? See, sugar is not the biggest problem which we are facing today. But on the other hand, while giving the sugars, we are giving lot of liquid calories Yes. to the baby, which is having long-term complications. आगे जाके एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ ड्रिंक्स में ऐड करके, शुगर के ड्रिंक्स जैसा कि कॉम्प्लान है, बोनविटा, हॉर्लिक्स, इसमें हर एक में शुगर ऐड करके दे रहे, तो दिस कॉजेज लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते। तो इसके वजह से जो है अक्सर जो है मिनिमल करके थोड़े से कम क्वांटिटी में शुगर इंट्रोड्यूस करिए, गो फॉर द नेचुरल शुगर्स इंस्टेड ऑफ गिविंग द एडेड शुगर्स। Right now we are facing a lot of obesity prevention in childhood particularly.
So what kind of preventions you want to advise? ओबिसिटी आजकल काफ़ी बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ गिविंग लॉट ऑफ जंक फूड एंड मोर ओवर फास्ट फूड टू द चाइल्ड. आजकल बच्चे जो है काफ़ी जो है बर्गर, पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें ज़्यादातर खाकर एक्स्ट्रा कैलोरीज दे विल टेक. तो दिस इज़ ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉजिंग देम वेट गेन एंड ओबिसिटी. बट साथ ही साथ में जो है ये प्रिवेंशन करना है so that they should not have complications of obesity. That is responsibility of the parents. They should reduce the child's junk food to less than at least once a week दिए ऐसा रखना. और साथ ही साथ में जो है घर के खाने का इंट्रोडक्शन करके घर का ज़्यादा से ज़्यादा घर के खाने की चीज़ पे अहमियत देना. तो इसकी वजह से जो है चाइल्ड जो है एक तो जंक फूड और एक्स्ट्रा कैलोरीज कम हो जाते, साथ ही साथ में जो है घर का खाना भी चाइल्ड को न्यूट्रिशियस खाना मिलेगा. इसके साथ में जो है बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि जब खाना खिलाते हैं तो काफ़ी घर में जो है टीवी लगा देते, जिसकी वजह से बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता. दे विल गो फॉर द फ्रीक्वेंट स्नैकिंग एंड दे विल जस्ट बी सो मच फोकस्ड, देयर माइंड विल बी सो मच डाइवर्टेड कि इसकी वजह से जो है जो क्या खा रहे, कितनी क्वांटिटी खा रहे, कितना खा रहे, उस पर कंट्रोल नहीं रहता. At the same time, physical activities also, yes, and sleeping, yes, and yes. so that These are very much important in today's thing. आजकल because of the restricted time, restricted schools, where is the schools not having the big grounds, physical activity has been come down very drastically in today's things. बहुत challenges. Last 5 साल पहले जब कोविड था, जिसकी वजह से जो है बच्चों में आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो के फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की सूरत में काफ़ी बच्चों में जो है ओबिसिटी देखने को मिली. जब वो आफ्टर कोविड पैंडमिक ख़त्म हुआ, अक्सर काफ़ी सारे बच्चों में जो है ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, जिसमें थोड़े बच्चों में हाइट में प्रॉब्लम आई, थोड़े बच्चों में ओबिसिटी में प्रॉब्लम आई. तो आज के ज़माने में जो है फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. You have to encourage, this is the responsibility of the parents to encourage their child to go for a minimum physical activity of at least दिन भर में 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी हो. चाहे वो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में हो या स्कूल में टाइम नहीं मिलने की सूरत में जो है घर में तो भी फिजिकल एक्टिविटी करा सकते. जैसा कि आपने बच्चे को लेकर जाकर साइकिलिंग पार्क में जाके साइकिलिंग कराना है, रनिंग कराना है, आप उनको एक स्विमिंग करा सकते, आप उनको हॉकिंग, स्किपिंग, बहुत सारे जो है एटलीस्ट 1 आवर की फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. ये फिजिकल एक्टिविटी उनकी ग्रोथ, उनकी हाइट और उनके वेट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, जिसकी वजह से जो है चाइल्ड में जो है एक तरीके में एनर्जी आती, चाइल्ड विल मोर फोकस्ड एंड चाइल्ड विल बी हेल्दी. At the same time, if you go for the food allergies, I mean, and what kind of allergies you are going to be and seeing right now at this? Most of the time children taking sweets, chocolates, ice creams, cool drinks and apple and some fruits and some nuts. जिसकी वजह से जो है आजकल most of the things most common is that the child is coming with wheezing, सर्दी खांसी, और बच्चों में सीना भर गया बोल के काफ़ी लेकर आते. खांसी मोस्ट कॉमन काफ़ी, उनको बच्चों को बुखार नहीं रहता, ज़्यादातर खांसी रहती. खांसी, सीना भरा हुआ, सीने में से आवाज़ आ रही, इसका क्या है. जब पूछते हैं, जब देखते हैं तो बच्चे ने चॉकलेट खा लिया, बच्चे ने स्वीट्स खा लिया, बच्चे ने है. इसकी क्या है, बच्चे में ज़्यादातर स्वीट्स, ज़्यादा चॉकलेट्स खाने की वजह से एक खांसी और ज़्यादातर बलगम जमा हो जा रहा है. इसका क्या है इम्पैक्ट, ये चीज़ों से अवॉइडेंस है. एक लिमिट में चीज़ देना है और वेरी कम क्वांटिटी में देना है. इस तरीके को जो है पेरेंट्स आजकल जो है बाहर लेके जा रहे, चॉकलेट्स दिला दे रहे, जिसकी वजह से जो है बच्चे अनकंट्रोल्ड चॉकलेट्स की डिमांड कर रहे, घर का खाना नहीं खा रहे. उसके वजह से जो है खांसी होके, सीना भर के एलर्जी कॉज हो रही. तो आपको जो है ये चीज़ों को प्रिवेंशन करना है, बाहर के ये स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड चीज़ को अवॉइड करना है और अर्ली इंट्रोडक्शन करना है. जैसा कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, जिसमें कि फैमिली में हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है, तो वैसे बच्चों में शुरुआत में एट 6 months ऑफ में जब खाना इंट्रोड्यूस करें, जब जो चीज़ खिलाने की कोशिश कर रहा है, जब भी आपको स्लो और वेरी स्मॉल क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस करना है ये चीज़ों को. और ये जब इंट्रोड्यूस करते, जब आपको ये जब इंट्रोड्यूस करते हैं ये क्वांटिटी में, आपको वेरी लेस क्वांटिटी देना है, 1 or 2 in a week देना है.
और ऑब्जर्व करना है कि इसके रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो रहे या कुछ साइड इफेक्ट्स एलर्जी के कुछ हो रहे या नहीं। अगर कुछ भी नोटिस हुए तो आपको अपने कंसल्टिंग डॉक्टर के पास लेकर जाना जी। है, उनको जो है बता के उसका जो है इलाज किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते, क्या चीज़ के मैकेनिज्म की वजह से ट्रिगर हो रहा, वो चीज़ को अवॉइड करके ज़्यादा से ज़्यादातर आप जो है एलर्जी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बच्चों में दालें या ये अंडे वगैरह जो देने की ताखिर से जो दे रहे हैं, वो भी एक वजह हो सकती है ना सर? जी, अंडे, दाल और ये चीज़ जो है बच्चे में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जी। प्रोटीन्स का सोर्स है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ जो है आप बाहर के ये जंक फूड देने से ज़्यादा ये घर की दाल, घर का अंडा, ये सब चीज़ें अगर बच्चे में स्नैक्स के वैसा या उसमें दिए तो एक तो बच्चे में इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बच्चे में जो है पावर आएगा और उसकी मसल बिल्डिंग में भी हेल्प होगी। जी, ये एलर्जी प्रॉब्लम के सिलसिले में व्हाट इज योर सजेशंस टू द पेरेंट्स टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ एलर्जीज? Maximum that child should be introduced all these things at very early age। एलर्जी के जो चीज़ थी फैमिली हिस्ट्री है तो उसको जल्दी इंट्रोड्यूस करिए आप। अगर वो बच्चे में आपको एलर्जी दिख रही तो वो एलर्जी को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादातर सेंसिटिव करके बच्चे को अवॉइड करने की कोशिश करिए। नहीं, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके ये चीज़ की सिवियरिटी क्या है, इसमें कब तक इम्प्रूवमेंट आता है क्या है, उसके रिलेटेड कुछ मेडिकेशंस है, कुछ उसके रिलेटेड कुछ सेंसिटाइजेशन के कुछ दवायाँ हैं या इंजेक्शंस है, उसका जो है आप यूज़ करके वो चीज़ को बच्चे को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम ब्रेस्ट फीड जो है ना वो बेबीज डोंट नीड एनी सप्लीमेंट्स बोल करके कहते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मदर मिल्क में विटामिन डी इज फाउंड इन वेरी लेस अमाउंट। To overcome that problem, we are supplementing vitamin D right from the birth. Otherwise, mother milk is best for the baby. Do you think that? And right now, at the same time, if we are going further, right now at the position, the mothers are avoiding to breastfeed. So, what do you say about it? अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना चाह रहे तो बच्चे में जो है जो ताकत, जो इम्यूनिटी थ्रू मदर मिल्क आती, जो नेचुरल इम्यूनिटी जो रहती बेबी में, वो चीज़ जो है कम देखने को मिलती। उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी इम्पैक्ट होता। जो मदर के जो न्यूट्रिएंट्स है उसका कोई रिप्लेसमेंट फार्मूला मिल्क में नहीं है। फार्मूला मिल्क विल ओनली हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, बट मदर मिल्क में जो इम्यूनिटी, जो ब्रेन डेवलपमेंट, जो ताकत, उसका रिप्लेसमेंट फार्मूला मिल्क नहीं कर सकता। ये अंडा, फिश और जिस तरीके के जो पीनट्स वगैरह हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं सर? किस तरीके का ये ग्रोथ मिल सकता है इसमें? इंट्रोड्यूसिंग कैसे हो सकता है? ये अंडा, पीनट्स एंड ऑल बहुत सारों को एलर्जी होती बोल के दे विल स्टार्ट अवॉइडिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। सेकेंड ईयर से स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे जने एडवाइस करते हैं, बट जितना अर्ली इंट्रोडक्शन करे, जितना जल्दी स्टार्ट करे, उतनी एलर्जी को ओवरकम कर सकते हैं। तो स्टार्ट गिविंग देम एट अर्ली एज and very small quantity so that their body should sensitize and overcome if they have allergy also. What do you say about the chubby baby is a healthy baby? Chubby babies are healthy babies only unless and until they'll have good immunity and good growth and development. So don't go for chubby, maintain the physical balance and go for healthy. Do you feel that fruit juice is a complete healthy for young children? No, fruit juices are not healthy for children because they contain lot of sugars and added things, preservatives. Always advise them to go for the natural food rather than drinking liquid food. It is better for them to chew and eat the natural foods. So that is important. So avoid sugar drinks and fruit juices up to 1 year of age. After that, you can start. Okay. At the same time, picky eating always means, what do you say that nutritional deficiency? What do you say about it, sir? Picky eating not always cause nutritional deficiencies, but if the child is particularly it's picky eating, it's not able to maintain the growth and development as per their growth standards, so it is going to cause nutritional deficiency. मल्टीविटामिन ज़रूरी है समझते हैं कि सर अपन बच्चों के ग्रोथ के लिए फिल वक्त की ज़माना? आजकल के ज़माने में मल्टीविटामिन्स, अगर बच्चा बीमार हो उसको रिकवरी है,
तो मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है। अदरवाइज जो भी न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन्स है, जो भी खाना बच्चा खा रहा है उसमें उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। And right now, at the same time, can you tell me that healthy food is expensive? Right now, the healthy food is expensive. So children can't avoid junk foods. आजकल के ज़माने में अगर प्रॉपर प्लानिंग करें तो नथिंग इज़ एक्सपेंसिव एंड नथिंग इज़ नॉट अफोर्डेबल, एवरीथिंग इज़ अफोर्डेबल। द बेसिक इंपॉर्टेंस इज़ क्या, आप अच्छा प्लान करके वो चीज़ों को जो है जिस तरीके से खिलाने करने का है आप जो है डिज़ाइन करके रखें तो आराम से खिला सकते हो। It's affordable. Yeah, Dr. Khizr Daimi, when we are going to wrap up our session, just I want to take one last bite from your side that what kind of information, what kind of guidance you are going to give about the awareness in public about the vaccines and as well as the food allergies and the last whatever you word for it. देखिए, most of the things vaccines are very important for your child. Go and take the vaccinations. They are safe with minimal side effects. It will prevent your child from hospitalizations. It will prevent your child from long-term disability, and it will help in their growth and development. The child will be able to go to the school regularly without having any serious complications. So that this vaccination should be completed. At the same time, what about the nutrition? Nutrition is very much important for the child, for the overall growth and development. Don't give your child junk food. Try to give them the home food right from an early age. Don't go for the packaged foods. Try to make food at home and serve them so that they have their own taste preferences, because eventually these child are going to eat the home food. So that early introduction of home food will help them to eat the food what we are going to prepare at the home. So especially the new mothers who are introducing the solids, don't try and give them the easy method, that is packaged foods. Go and give them the food which you can prepare at home, which you can give them at easily and which have more nutrition and more benefits rather than giving the packaged foods. Thank you very much, Dr. Khizr Daimi. Welcome. Yeah, just we have gone through all the session. We are very good informative session we have conducted right now, and the most probably I think that the session what we have concluded right now, there's a more impact and it will give a very good improvement to bring the new mothers who are just become. So I think that it's a very important and very impactful session. Yes, we are going to conclude it now, right? Just keep watching